ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਏਮਸ ਬੱਸੀ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਏਮਸ ਬੱਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਰ, ਦੱਸੋ सर 5 दिन हो गए, लड़का मेरा एडमिट है 23,000 से नहीं मेरे को जॉब करता है लड़का, जॉब करता है तो 5 दिन हो गए एडमिट। आज मैं छुट्टी से आज मैं सारा दिन सवेर ਦਿੱਤੇ हैं तो मैं कंटीन च चाह पीन गई, 3 बंदे बाहरों आए तो ड्रिंक की। मैं कहा बाहर के बंदे ड्रिंक कर रहे तो आप की रहना। मैं फिर अपने लड़के उपर मिलन चल गया तो जेड़ा ड्रिंक कर रहा सी लड़का उपर वो सैंपल ले रहा मेरे लड़के का तो मैं वो बाँह फड़ ली कि मैं तू ड्रिंक के सैंपल ले रहा वापसी। वो पानी पानी हो गया, मैं डॉक्टर को खिंच के लै गया। डॉक्टर को लगे हैं तो डॉक्टर कहता कोई गल नहीं जी, गलती हो गई इदा तो इन्होंने मुंडे तीनों भजाते। इन्हें तीनों मुंडे भजाते कहते कि सामने भजाए मुंडे। हाँ जी, मेरे को वीडियो हैगी है भजन भजान की मुंडे वीडियो हैगी तिन्हां दी, तिन्ने वीडियो हैगी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ? डॉक्टर बस्सी है, डॉक्टर बस्सी बस्सी डॉक्टर है। तो उस तो बाद डॉक्टर का की कहना कहता जी तुहाडे लड़के को कुछ होया तो नहीं ना। उस तो बाद यह कहना गलती मनन दवाए कहता कि तुहाडे लड़के तो नहीं कुछ होया, गलती मनदा इदा। मैं कहा कि जो होएगा फिर की करदे तुसीं? फिर कहते कि जो प्रैस वाले बुलाना बुला लो, जिन्हें न्यूज़ देनी दे दो, कोई दिक्कत नहीं सानूं कहता। बस यह गल मतलब कि एक जो गलती की थी उस तो बाद तुहानूं कहदे कि किसी ने बुलाना बुला मैं प्रैस वाले बुला रहा कहता बुला लो जी, बुला लो, जो न्यूज़ दे दो जिन्नी देनी इदा कहता। अच्छा हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर सार तो पहला मैं यही कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेटर जो अपनी सीएम साहब तो छोटी जी अपील है जी, प्रॉपर नू इस केस ਨੂੰ प्रॉपर हैंडल करे जी, चैक करावे जी शराब पीती नहीं पीती, इन्हों का मैडिकल करावे। बोतल ईवन दैट इन्हों की बोतल भी ਲੱਭੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਸਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ टाइप ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ बैंक्स वगैरह जो भी है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ मतलब कि ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਹੈ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵੇ। क्या इसी बोतल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੋਤਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੋਤਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ मतलब कि ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 5,000 ਸੈਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2-3 ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੈੱਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਡੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। 3 ਘੰਟੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ EMPLOYE ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ? ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸੇ, ਬੋਤਲ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਤਲ ਚਲੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਸੀ किसी को हमें कौन सा पता चलेगा कौन फोन करके कौन? अब बताओ, मैं पेशेंट देखूं या फिर मैं किसी को बात अलग है, वो बात अलग है। तो मैं जो बंदे भज्जे ना उन्होंने बुला के साफ बहादुर आए मेडिकल करा दो, दैट्स ऑल। हाँ करा लो, कोई प्रॉब्लम सर नहीं उन्होंने बुलाओगे ना, ताकि मेरे कॉल करते नहीं आओगे कदे भी। मेरे लैब मेरा नहीं है, ठीक है, मेरे लैब वाले सर लैब है जी, हॉस्पिटल तो आना ना सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਬ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ लैब नहीं ऐसा थोड़ी है। हॉस्पिटल सर ਤੁਹਾਡਾ ही आपने कंप्लेंट की है ना? हाँ जी, तो आप उनकी जो मर्जी लैब करा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बड़े भैया ये बात कर रहे हैं, बात करो। सर उन्होंने कॉल करके बुलाओ, साहब बहादुर बैठे हैं। हाँ करा लो। हाँ जी बुलाओ ना, साढ़े कहते हैं, साढ़े कहते नहीं आओगे, साढ़े बंदे लैब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ सर 100% कांटेक्ट करदा, बाहर थोड़ी कोई आ गया। मतलब लैब तो आउटसोर्स है ना, मैं कोई उनका वो सर एम्प्लॉय नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਬ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸਰ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਿੰਨੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਭਜਾਇਆ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ हॉस्पिटल आए यहाँ पे ना, पुलिस में प्रेस आई हुई है। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਮੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ हाँ जी। क्यों हम गलत नहीं है किसी पॉइंट पे? तो क्या है, अब देखो कोई बाहर से अगर कोई आ रहा है, हम ये कर सकते हैं, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, हम हॉस्पिटल में उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे आगे जो आया हमने इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं हम उसके अगेंस्ट, अगर कोई चीज हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। हमारे तरफ से पेशेंट का हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई एम्प्लॉय ड्रिंक करेगा? अपने परमिशन तो बिना तो कोई इंटर नहीं करोगे। देखो हॉस्पिटल में आप इस वक्त आए हो, आप मेरी परमिशन कोई लेकर भी आए हो। अंदर मेरी एक मिनट नहीं हमको परमिशन वो चीज नहीं सर, वो चीज नहीं, आप चुप रहिए, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਅਸੀਂ आना बिल्कुल सर, आ जाओ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन प्राइवेट बंदा खड़ा होगा तो सर परमिशन रिलैक्स, नहीं एक दोगे। मिनट रिलैक्स, कोई आपको कुछ कह रहा है? ये बोल रहे हैं ना हमारे हॉस्पिटल इज जी बोल रही है, हॉस्पिटल पब्लिक एरिया, ठीक है। पब्लिक एरिया में कोई भी किसी भी टाइम पे आ सकता है, ठीक है ना। 24 आवर सर्विस, इमरजेंसी सब कुछ अवेलेबल है। हम आएंगे, हाँ जब मर्जी आओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब अगली चीज ये आती है, जिस बंदे को इन्होंने कंप्लेंट की है वो हॉस्पिटल एम्प्लॉय नहीं है, उसको हॉस्पिटल कोई सैलरी नहीं देता, उसका कोई प्रोविडेंट फंड या कुछ भी हमारी तरफ से नहीं करता, ठीक है। हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आई, चाहे वो हॉस्पिटल सर, वो ਤੁਹਾਡਾ patient लेट मी कंप्लीट, ओके सर, कंप्लीटेड। अगर वो हमारा हॉस्पिटल एम्प्लॉय भी होता तो हमने उस क्या करना था, एक्शन लेना था, उसको निकाल देना था। हमने वही किया कि वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेना निकालना नहीं था, जो कार्रवाई होगी हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कार्रवाई करो। आपके परमिशन के बिना पेशेंट के पास कैसे किया? सर जो बंदा हॉस्पिटल एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो जाता है, अब लैब वाला पेशेंट बंदा है, ठीक है, उसको सैंपल लेने हैं, हमें थोड़ी पता है कि उसने अल्कोहल लिया है, ना ही उसने हमारे सामने ली है, ना ही हमारे कहीं पे आप एग्री है, लेकिन वो किसी को इन्फॉर्म करके उनका सैंपल लेने जाएगा। किसका? सर हमने जाके लैब में लिख दिया, फाइल में लिख दिया कि इनका ये सैंपल लेना है, लैब वाले आएंगे, काफी नॉलेज में आ गया ना, लिख दिया तो हाँ, तो हम सारी दुनिया आपकी के परमिशन के बिना थोड़ी किया। चलो तो बताओ, आपने ठीक है लिख ना, दिया वो गया।
ही इज अ एम्प्लॉय ऑफ द लैब, ठीक है ना। लिख के तो आपने दिया ना सैंपल लेने के लिए, तो वो तो मैं लिखूंगा ही ना सर, मैं वो लैब का बंदा फिर आता आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप बताओ, मेरे सामने ओपीडी में जो पेशेंट आएगा वो ड्रिंक करके आ गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रिंक करके आएगा, ये मेरी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको सैंपल लेने के लिए आप अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ गया तो मेरी क्या गलती? वही आप पूरा मामला क्योंकि जो यहाँ पे जो बाहर लोग खड़े ट्रीटमेंट के दौरान कहा गया है कि शराब पी के ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऐसा कोई किसने कहा आपको कि शराब पी के ट्रीटमेंट किया है? सब पास में है और ये बॉटल है। किसने? फुटेज उनके किसी पास यहाँ पे इस टाइम पे पहली चीज़ ये कंप्लेंट टोटली गलत है। कोई भी हॉस्पिटल का जो एम्प्लॉय है ही इज़ नॉट एट ऑल ड्रंक, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल का एम्प्लॉय, मेरे 100% हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉय है, आप किसी का भी सैंपल ले लो, अगर किसी का शराब पी के मतलब किसी का अल्कोहल पॉजिटिव आ जाता है तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक मिनट, अगर जो अभी जो कंप्लेंट आई है, बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि इन कोई जो लैब है, लैब का एम्प्लॉय विच इज़ अ आउटसोर्स लैब विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं है। एंड उन्होंने मतलब कि उन्होंने कहा कि अटेंडेंट ने कि दे हैड समवन हैज़ कंज्यूम्ड अल्कोहल इन फ्रंट ऑफ देम। इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था एंड फिर भी वी हैव टेकन एन एक्शन एंड वी हैव आस्क्ड दोस पर्सन टू लीव द हॉस्पिटल इमीडिएटली, ठीक है। लैब जो है एपेक्स लैब है विच इज़ अ वेरी ओल्ड लैब रन बाय नोन पैथोलॉजिस्ट एंड उसमें अगर जो एम्प्लॉय जो भी जिनकी भी कंप्लेंट हुई है and he is not a part of the hospital, they have to go outside hospital, they take us come to सर, hospital। जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल का ये सिस्टम में नहीं आता है वो जो बंदा था ना, हाँ जी। पर वो बिना आपके परमिशन के क्या हॉस्पिटल के अंदर इन कर सकता है? बेसिकली वी हैव अ MUO ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल। हर एक लुधियाना के हॉस्पिटल में, हर एक लुधियाना की लैब में हर उनका डिफरेंट हॉस्पिटल से कनेक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम लैब वालों को बोलते हैं, लैब वाले अपने एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटल में भेजते हैं एंड उनसे हॉस्पिटल के सैंपल लेके बाहर जाके अपनी लैब में लेके जाके प्रोसेस करते हैं। सर, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेवारी होती है कि हम ऐसे लोगों को अंदर आने दें कि जो शराब पी के काम करे? सर, किसी भी मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि उसके हॉस्पिटल पे कभी भी या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए या दाग लगे, ठीक है। हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अगर कोई पेशेंट, अगर हॉस्पिटल का एम्प्लॉय अगर ऐसा कुछ करे तो हॉस्पिटल की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बहुत अच्छी बात की है आपने कि जैसे कि शिकायत करने के बाद उन्होंने एक सीनियर डॉक्टर से बात किया कि वो कहते हैं कि किसी, चाहे आप मीडिया को बुला लो, चाहे किसी को ऐसा थ्रेट दिया गया उनको। नहीं, ऐसा तो कोई थ्रेट की तो कोई बात ही नहीं है। थ्रेट की तो कोई बात ही नहीं है सर इसमें, कि आप किसी मतलब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, प्रॉब्लम की क्या बात है सर इसमें? मैंने अगर किसी ने कोई कंप्लेंट की है, ठीक है ना, ये तो अननेसेसरी डॉक्टर्स के ऊपर हैरेसमेंट करने की बात होगी है कि हाँ भी हम मीडिया बुला लेंगे। ये सबसे कॉमन चीज़ होगी आजकल पेशेंट्स की। हमारी डॉक्टर चाहेगा क्या है कि मीडिया को लास्ट कब बुलाया जाता है? लास्ट में जब उसका कोई सुनवाई नहीं होती या कहीं उसका कोई केयरिंग नहीं होती। आप बताओ कि पहली चीज़, एम्प्लॉय इज नॉट द पर्सन इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। डॉक्टर नहीं भागे है, डॉक्टर ने कोई ऐसे रूड नहीं बोला है, ठीक है। मीडिया का नाम किसने लिया? अटेंडेंट ने। तो किसकी गलती है? अटेंडेंट की। मीडिया एक्चुअली अटेंडेंट ही धमकी दे रहा है मीडिया को बुलाने के लिए, डॉक्टर ने नहीं बोला। अगर मैं हम अगर ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਟਿਵਾ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ। ਕਿਉਂ ਸਰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं, बेसिकली जैसे इन्होंने हमें बताया, अगर मेरा एम्प्लॉय बाई चांस होता तो मैं क्या कहता उसे कि तू आज के बाद मेरे हॉस्पिटल में एंटर नहीं करेगा। सर, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं होनी। ऐसा तो हम कुछ भी नहीं कह रहे। यार मैं भी कह देता हूँ, मैंने भी तो यही बोला है कि धमकी इन्होंने दी है, मीडिया को बुलाएंगे, आपके शोर में चाहेंगे। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, दारू हैगी पई सी की स्मेल। सर, मैं कह रहा हूँ कि अब इस बॉटल में पानी आ रहा है या दारू आ रहा है हॉस्पिटल में, कौन हर बंदा चेक कर सकता है? आपके क्लिनिक में, आपके ऑफिस में कोई भी बंदा। बिल्कुल आपने गल कही होने की भी इस हॉस्पिटल में दारू आ रही है या पानी आ रही है। हाँ, मतलब ये बोतल कहाँ से आई फिर? जो बंदा बाहर से आया है, कोई भी बंदा, जितने पेशेंट्स आते हैं, हर पेशेंट की मैं बॉटल थोड़ी चेक कर सकता हूँ। इस बात पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट कितना एक्शन लेगा, क्योंकि ये गलत है? इमीडिएट एक्शन वी हैव टेकन इमीडिएट एक्शन। जो उन लोगों ने गलती की उनको पकड़ के हमने कान से हॉस्पिटल से इमीडिएटली बाहर निकाल दिया। अगर इस दौरान अगर जैसे कोई सैंपल ले रहा था, अगर जैसे को बताया गया, जिन्होंने शिकायत किया कि उनके कितने सेल रह गए बताया आपने? 5000 सेल रह गया। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर किसी का सैंपल लेने में किसी के सेल से प्रॉब्लम, किसी की मिस्टेक की वजह से अगर किसी की जान चली जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, उससे रिस्पॉन्सिबल है? अगर सैंपल लेने से किसी की जान पहली चीज़ नहीं जाती है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ कि वो मेरे हॉस्पिटल का एम्प्लॉय सर, नहीं आप है। एक डॉक्टर है, हाँ। आपको ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि जो दारू पी के ड्रिंक करके सैंपल ले रहा है, क्या पता वो बेंस में जा रही है सिरिंज या नहीं जा रही है? वो तो हमें पता ही नहीं ना कि हमने उसने मैंने ड्रिंक की है कि नहीं। ये हमें कैसे बाहर से ड्रिंक लेके आया या अंदर हाँ। लेके बैठा, हमें थोड़ा पता है। वो तो इन्होंने बताया तो पता लगा, हमने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। क्या इन्होंने बताया जब आगे पेशेंट की कंप्लेंट की कि पेशेंट के मतलब कि जो लड़के हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमने इमीडिएट एक्शन लिया और उनको एक्सपेल कर दिया। कोई भी एम्प्लॉय अगर मेरा भी हॉस्पिटल का है या बाहर का है, जी, अगर आपका भी होगा, अगर आपको कंप्लेंट करेगा कि आपके बंदा बैठ के वहाँ पे ड्रिंक कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? एक्सपेल ही करोगे ना। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? ये तो नहीं हम उसके वहाँ भी उसकी पढ़ाई करनी शुरू दे, कुछ करनी शुरू कर दे। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ये सब ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ डॉक्टर साहब, ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿੱਤਾ जो ਜਾਊਗਾ मैं बंदों को इनको हैंड ओवर कर दूंगा, पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा, मेरा उनसे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ उन्होंने अपने आप शिफ्ट कराया, मैंने पेशेंट को शिफ्ट नहीं कराया, मेरे तरफ से पेशेंट को ਬਟ सर ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ 5 दिन से पेशेंट को कुछ हो गया, पेशेंट अभी भी अपने आप ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ हम चाहेंगे किसी को होगा, हम चाहेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फिर हॉस्पिटल एम्प्लॉयज तक है या हमारे तक है, ठीक है ना। मतलब मरीज को कुछ भी हो जाए, मरीज को कैसे आप अलाउ करते हो ना कि सैंपल ले, आप आके कुछ उल्टी सीधी दवाई दे दो पेशेंट को, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। परिवार सर एक मिनट सर, परिवार उल्टी सीधी दवाई क्यों दोगा सर? ये तो मेन पॉइंट सर, ये तो बहस आ क्यों हॉस्पिटल की उल्टी सीधी दवाई देगा, हॉस्पिटल चाहेगा, हॉस्पिटल अपनी जान लगाएगा ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। नहीं बचा सकता था। मेन एम्प्लॉय किथे है, उन्होंने बुलाओ। एम्प्लॉय को अभी आ रहा है ना, मैंने कॉल कर तो दिया है, वो हॉस्पिटल एम्प्लॉय नहीं है, पहली चीज वो बाहर का एम्प्लॉय है। उस बंदे को मैंने कॉल करके बुला लिया है, वो आएगा, उनको लो जो मर्जी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक्शन कौन लोग ऑन देते? आप लोग लोगे, आपके नहीं सर ਅਸੀਂ क्यों लिए, ਤੁਸੀਂ नहीं लोगे? मैं तो हॉस्पिटल में मेन डॉक्टर की तरफ से भी तो कोई कार्रवाई की जाएगी ना। कार्रवाई करूंगा। ਅਸੀਂ मीडिया आप बताओ सर, ये तो आप नहीं कर, देखो हमारा हॉस्पिटल का कोई एम्प्लॉय नहीं है, आज के बाद वो हमारे हॉस्पिटल में कभी एंटर नहीं करेंगे वो लोग, वो हमारी तरफ से प्रॉमिस है। सर अगर कोई दिक्कत हुई फिर दोबारा दिक्कत क्यों हुई? अगर दोबारा वीडियो आ गई अंदर वायरल हो जाती है, फिर भी उनके ऊपर एक्शन लिया जावे ना। डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई हमारा एम्प्लॉय ऐसा करेगा, मैं आई विल टेक केयर ऑफ दैट। थोड़े ना मैं अपने हॉस्पिटल में अच्छा सर, एक चीज और है कि जहाँ डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि जहाँ सरकार अवेयरनेस फैला रही है कि यहाँ पे जो नशा मुक्त पंजाब करना है, ठीक है ना, वहीं पे जो आदमी शराब पी के जो सैंपल ले रहा है, ठीक है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि हम निकाल दी, सिर्फ निकाल देना ही एक या डॉक्टर की तरफ से भी अगर कोई कानूनी प्रतिक्रिया अगर करनी पड़ी डॉक्टर की तरफ से? मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। देखो मैंने बस यही जानना था, क्योंकि आपने बोला हमने निकाल दिया, क्योंकि आम जनता को भी प्रॉब्लम है, उनके डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से भी ये होनी चाहिए कि उनको डॉक्टर उनका सपोर्ट कर रहा है। जो मर्जी एक्शन ले सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट गलत है वो गलत है। मैंने कहीं पे कोई ऑब्स्ट्यूशन ठीक है सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ एम्प्लॉय ਸੀ हाँ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ? एपेक्स लैब है, लैब उसके पैथोलॉजी लैब है, उनका एम्प्लॉय है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं उनको छुपा दूं या बचा लूं उनको, मैं तो कह रहा हूं जो कर रहे हैं। हां, मैंने 2 बार आपके सामने कॉल किया उनके ओनर को। ओके ठीक है सर। सर 5 दिन हो गए थे एडमिट सी लड़का, आज मंडे है, मैंने छुट्टी सी, आज मैं क्या सारा दिन रहूँगा, देखा की हाल है मुंडे का। तो 10 को मैं इत्थे आ गया सीगा, तो 11 साढ़े 11 मैं चाह पीन चल गया, थक गया मैं चाह पीना। 3 बंदे अंदर आए, बोतल आकिया वाली बोतल लिती, उन्होंने जूस वगैरह लिते, उन्हें जूस से पाई बोतल, किसी का बर्थडे सीगा, तो मैं कहते बाहरले बंदे होने पीन तो आपा की लेना है। मैं चाह पी के ऊपर चल गया, लड़के पास गया, तो मैं लड़के में हौसला दिता, मैं टेंशन वाला, मैं बैठा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो जो मैं बाहर आ रहा है तो ड्रिंक लड़का करदा अंदर जा रहा सी, मेरे को फोटो हैगी दिखाना, तेन फोटो दिखाना। तो मैं कि वैसे अंदर पेशेंट मिलन चल रहा है, टोकरी फड़ी हुई थी हत्थ च, तो मेरे पेशेंट को चल गई वो लड़के को, तो उन्हें सरिंज इदा वाड़ी जिदा चूहे मारना होंगे। ड्रिंक नशा अखा पूरी टाइट हो दियाँ। मैं आगे नीचे मैडम को कहा कि मैडम इदा लड़का ड्रिंक करके सैंपल ले रही, पानी हो गए, कि लड़का मैं क्या बैठे 2, एक तीजा भजाता इन्होंने, मैडम सारे डॉक्टर ने भजाया, उन्होंने किया लास्ट उस तो एक दूजा भजाया, फिर लास्ट मैं तीजा तो यही बैठा होया है, फिर तीजे की एक्टिवा में रिकॉर्डिंग की है, सारी बाहर रिकॉर्डिंग की, सारी वीडियो बनाई है, किदा भज्जे फुटती ना गया। की चाहते हो तुसीं?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਰਨ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। 3 ਘੰਟੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਡਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭਜਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਰਾਜ ਦੱਸੀ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਹਸਪੀਟਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜੇ, ਤੇ ਉਹੀ 400 ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਲ ਕਿਸਨੇ ਕੋ ਕਰ ਦਿਆ? ਚਲੋ आओ, ऐसे ऊपर है, चलो आओ। फाइल ही नहीं दे रहे। की बात आप कर रहे हो? बस यही हम कहना चाहेंगे, पता नहीं और कितनों के साथ ऐसा होता होगा, हमें तो नहीं पता, पर किसी और के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। ठीक है। ਥੋੜਾ ਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ PCR ਲਵਾਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ।